آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے آج ساری ماں کو ہیپی مدرس ڈے۔ یہ ماؤں کا عالمی دن ہے۔ ایک دن ٹھہرایا گیا ہے کہ ماؤں کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، ماں کو خوش کیا جائے۔ بے شک ہمارا ہر روز ہیپی مدرس ڈے ہونا چاہیے، ماؤں کا دن ہونا چاہیے، ماؤں کو وش کرنا چاہیے، ماں کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اچھا ہے کہ آج کی مصروفیات میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ ماں کو خوش کر سکیں یا تعریف کر سکیں، ان کے اپنے بڑے کام ہیں۔ آج کا دن یہ بہت اچھا دن ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو یاد کریں، جن کی مائیں خدا کے پاس چلی گئی ہیں وہ بھی یاد کریں، کس طرح ماں نے ان کی تربیت کی، کس طرح وہ روحانی طور پر ماں کو اپنے بچوں کو خداوند کے قریب لے کر کے آئیں۔ ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ ہماری ماں نے ہماری تربیت روحانی طور پر بہت اچھی کی، میں آج اسے یاد کرتی ہوں۔ اگر آج اس نے یہ تربیت نہ کی ہوتی تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے، ہم اس کے قدموں میں نہ آتے، ہم اس کی حضوری سے دور ہوتے۔ لیکن خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جن کی ماؤں نے ان کی تربیت روحانی طور پر خداوند کی راہ میں کی ہے، ان سب کو میں بہت بہت مبارک دیتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح کا کردار، کس طرح کا رول بائبل کے مطابق ماں نے ادا کیا ہے، اور ماں کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ ماں کی یسوع مسیح نے بڑی قدر کی ہے، ماؤں کی بڑی قدر ہے۔ یہ آپ نہ کہیں کہ اگر ہماری اولاد یا ہمارے اور رشتہ دار ہماری تعریف یا ہمیں خوش نہیں کرتے، لیکن کلام میں آپ جب پڑھو گے کہ خداوند یسوع مسیح ماں کی کتنی قدر کرتا ہے، ماں کی کتنی ویلیو ہے، یہ آج ہم خداوند کے کلام میں سے بھی سیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے کلام میں سے پڑھوں گی زبور 128 اور اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ زبور 128 اس کی 3 آیت۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ کتنی خوبصورت آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس درخت کی مانند ہے، پھل دار درخت کی مانند، جس پر پھول لگتے، پھل لگتے، اور وہ پودا بڑھتا اور اتنا وہ پھلدار ہوتا ہے کہ اس کی چھاؤں میں پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور ماں کو اس پودے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ماں ایک ایسا پودا ہے جس کی چھاؤں میں اس کی اولاد بیٹھتی ہے، اور اس پودے کے نیچے بیٹھ کے ماں کی چھاؤں، اس کی محبت کے ساتھ اس کے نیچے بیٹھ کے وہ اطمینان پاتے ہیں، بچے راحت پاتے ہیں۔ ماں کے سائے کے نیچے رہ کے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ بے شک باپ کی بھی اسی طرح قدر ہے، ویلیو ہے، لیکن ماں کے بارے جو آج ہم سیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پھلدار درخت ہے کہ اس کی چھاؤں میں اس کی اولاد بیٹھتی اور راحت پاتی اور اطمینان پاتی ہے۔
میں ایک پہلی بات جو کروں گی، ماں خاندانی ڈھانچے کے لیے مرکزی حیثیت کی حامل ہے. جو ماں کا ایک خاندانی ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ایک خاندان کو وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے ماں. خاندانی ڈھانچے کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے محبت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ ماں کو خاندانی ڈھانچے کو قائم رکھنے کے لیے باہمی ہم آہنگی، محبت کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے. تب ہی ماں ایک خاندان کو قائم رکھ سکتی ہے. ایک خاندانی ڈھانچے کو قائم رکھنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، یونٹی، اتحاد، ہم آہنگی کی ضرورت ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو مٹھی کی طرح جوڑا ہوا ہے، مٹھی میں لیا ہوا ہے، قائم کیا ہے، تربیت اس طرح کی کر دی ہے کہ بچے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے. اس ماں کے اس پھلدار درخت کے نیچے محفوظ ہیں، سکونت اور محفوظ اور راحت اور اطمینان پا رہے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں. ایک اچھی ماں کی یہی مثال ہے کہ وہ کس طرح محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑے رکھے گی، کس طرح وہ روحانی طور پر اس کی تربیت کرے گی کہ بچے ایک مٹھی ہو کے اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہیں. تو پہلا، اگر ہم اس ڈھانچے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، محبت، ایک دوسرے سے محبت کریں. ماں کی ایک بہت بڑی مثال ہے، وہ کئی ایسی مائیں جو میں نے دیکھی ہیں، وہ کبھی بھی ایک بچے کی بات دوسرے بچے کے خلاف نہیں کرتی. بے شک خاندان میں رہتے ہوئے بچوں کی آپس میں ہو ہی جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ماں کو ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بچے کی بات دوسرے بچے کے خلاف کرے، دوسرے بچے کی بات اس بات سے کرے. ماں کا دل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ہر بچے کا راز اپنے دل میں سمیٹے رکھتی ہے. وہ ہر بچے کی دکھ درد کی بات اپنے دل میں سمیٹے رکھتی ہے. وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونے دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا خاندان، میرے بچے بکھر نہ جائیں، جدا نہ ہو جائیں، کیونکہ کئی دفعہ خاندانوں میں یہ دیکھا گیا ہے. ایک دفعہ ایک مسیحی آدمی تھا، لڑکا تھا، جوان تھا. آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نوجوان نسل اپنی مسیحت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یسوع کا انکار کرتے ہیں. لیکن میں خدا کے کلام میں سے یہ آپ سے بات کروں گی کہ ماں ایسی تربیت کرتی ہے کہ جب وہ بچہ اس راہ سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن اس بچے نے اپنی ماں کی اس تربیت کو یاد رکھا اور اس بچے کی ماں کی زندگی اس پر غالب آئی. وہ چھوڑ کے کہیں نہ بھاگا، اس لیے کہ ماں نے ایسی مضبوط اس کی روحانی راہوں پر تربیت کی تھی، اس ڈھانچے میں اس نے اس کو ڈالا ہوا تھا کہ وہ اس سے راہ فرار نہیں کر سکتا تھا. ہمیں بھی ماں کو چاہیے کہ بچوں کی روحانی طور پر اس طرح کی تربیت کرے کہ وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے منکر نہ ہو. ماں کی اس تربیت کو یاد رکھے کہ فلاں وقت میں میری ماں نے مجھے بائبل مقدس میں سے یہ سکھایا تھا، میں کیوں اپنے یسوع کو چھوڑوں، مسیحت کو چھوڑوں اور کسی اور مذہب میں چلا جاؤں. یہ ماں کی ہی کی تربیت ہے کہ وہ ماں کی اس بات کو یاد رکھتا ہے، ماں کی اس تربیت کو یاد رکھتا ہے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں تیموتھیوس کا خط، دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ اگر پڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ماؤں کے بارے میں، کہ کس طرح ہماری مائیں ہماری تربیت کرتی تھی. دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں.
खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यून के रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। यानी उसकी माँ और उसकी नानी ने उसकी ऐसी तरबियत की है कि वो उस राह से कभी भटक नहीं सकता है। कई दफा हम कहते हैं कि जब हम कहीं रिश्ता करने जाते हैं बेटे का, तो हम तो ये भी कहते हैं उसकी पहले मां को देखो, उसने क्या तरबियत की होगी बच्चे की। लेकिन मैं कहती हूं कि लोग कहते हैं सबसे पहले उसकी नानी को देखो। अगर नानी की तरबियत है तो फिर वो मां में शिफ्ट है, अगर मां में शिफ्ट है तो फिर औलाद में शिफ्ट है। इसी तरह खुदा के कलाम के मुताबिक ये देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में है मां का किरदार, नानी का किरदार, कि वो किस तरह रूहानी तौर पर अपने बच्चों की तरबियत करती है। जैसे मैं अपनी मां को याद करती हूँ, मेरी मां ने मेरी तरबियत की है। हमारे सारे बच्चों की बहन भाई, हम 7 बहन भाई हैं, और सब खुदावंद पर ईमान रखने वाले, रूहानी तौर पर मजबूत, ईमान में मजबूत है। इसलिए कि मेरी मां बेशक अनपढ़ थी, लेकिन बाइबल मुकद्दस की हर बात उनको याद थी। खुदा के घर जाना, हमें संडे स्कूल भेजना, और फिर हमें तैयारी करना हमारी सुबह सवेरे उठ के खुदा के घर में जाओ। यह है कि जो आपकी मां ने आपकी तरबियत की है, आप कभी भी ईमान से मुनकिर नहीं होंगे, अब कभी भी यीशु से इनकार नहीं करेंगे, कि इसलिए आपकी मां ने रूहानी तौर पर इस कदर आपको मजबूत बना दिया है कि आप उस राह से कभी भी नहीं भटकेंगे। तो हमें माओ को जो मैं आज कहना चाहती हूं कि आप बच्चों की उस राह पे तरबियत करो कि वो कभी भी ईमान से मुनकिर ना हो। ईमानदार माएँ अपने बच्चों के इर्द गिर्द ऐसे सांचे में डाल दें कि वो कभी भी राह से फरार ना करें। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये करूंगी कि माँ के किरदार की अहमियत, माँ का किरदार क्या रोल अदा करती है, क्या किरदार है माँ का। जिस तरह इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और 27वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। क्या करती है? अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। कौन सी माँ? ईमानदार माँ। ईमानदार माँ का किरदार क्या है? ईमानदार माँ का किरदार ये होता है कि वो सुबह उठती और अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने शौहर के लिए सुबह उठती और दुआएं करती है, खुदा का कलाम पढ़ती है। जब हम सुबह माएँ उठ के, जब हमारा खानदान तब सो भी रहा होता है, आप उनके लिए बरकत की दुआ करें, आप उनके लिए बरकत चाहें, आप उन्हें यीशु के सुपुर्द कर दें, आप उन्हें यीशु के लहू में छुपा दें और ये कहें कि खुदावन मैं अपने खानदान को, बच्चों को तेरे सुपुर्द कर देती हूं। फिर देखना कि खुदावन किस तरह हमें बलाओं, वबाओं, बीमारियों से बचाएगा और अपना आसमान हमारी जिंदगियों पर खोलेगा, और हम तजर्बे से देखेंगे कि खुदावन कितना मुबारक है जो हमें हर रोज संभालता और फिर उन माओं को बरकत भी देता है। हमें ये सीखना चाहिए। मैं आज यही कहूंगी, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं कह दूंगी एक माँ होते हुए, रूहानी माँ, इसलिए कि जो कुछ मैंने तजर्बे से सीखा, जो कुछ मैंने अपनी माँ से पाया, और वो ही मैं आपको बताना चाहती। बेशक कई लोग बड़े नींद के प्यारे हैं, देर देर तक सोते हैं, बेशक शोहर सोता रहे, बच्चे सोते रहे, लेकिन एक घर की जो जिम्मेदार, जिसका किरदार ही यही है कि वो सुबह उठे और अपने खानदान के लिए बरकत मांगे, अपने खानदान के लिए बरकत मांगे, रूहानी तरक्की मांगे, ईमान की मजबूती मांगे। जब आप दुआएं करेंगे, अपने बच्चों को यीशु के सुपुर्द कर देंगे, तो वो बड़ी बड़ी बलाओं और वबाओं से बचे रहेंगे।
गलत राहों से बचेंगे। सुबह उठें, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को याद करें, उसकी बरकतों को याद करें कि वो किस तरह हमें हर रोज संभालता है। बेशक बाप की जिम्मेदारी है, वो कमाता है, मेहनत करता है, बहुत कुछ करता है खानदान के लिए, लेकिन माँ का किरदार यही है कि अपने बच्चों को उन राहों पर लेकर चले जो राहें खुदावंद की तरफ जाती हैं, उनकी तरबियत करे। जब सुबह उठते ही खुदावंद से दुआ करती हैं तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और हमें जवाब देता है। हमारे खानदान में उसका जलाल जाहिर होता है। हर रोज के खुदावंद तेरा जलाल मेरे घर में जाहिर हो, मैं अपने बच्चों को तेरे सुपुर्द कर देती हूं, ये कभी भी ईमान से मुनकिर ना हो, बल्कि तेरी राहों पर चलें, तेरे नाम को मुबारक कहे ये बच्चे। तो फिर देखना खुदावंद किस कदर आपको हर तरह की रूहानी और दुनियावी बरकतों से माला माल करेगा। ये कितना अच्छा माँ का किरदार है। माँ का किरदार वो किस तरह, शुरू से आप अगर देखें कि माँ ने क्या किरदार अदा किया, बच्चे के पैदा होने से, इसी से ही इंसानी नस्ल आगे चलती है, इस माँ के वसीला से, इसी से मुआशरा कायम होता है, इसी से, माँ से। तो माँ को आप देखते हैं कि किस कदर बच्चे के लिए दिन और रात स्ट्रगल करती है, अपने आप को इस तरह की कुर्बानी वो दे देती। माँ कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी। नींदे हराम, रातों को जागना, उठ उठ के दूध पिलाना, और फिर यह भी जागना कि कहीं मेरा बच्चा, मैं सो ही रहूं तो बच्चा भूखा ना रह जाए। किस तरह माँ करती है, ये माँ का किरदार है। जवान होने तक वो इस तरह बच्चों को संभालती है और अपनी इर्द गिर्द से वबाओं और बलाओं से बचाए रखती है। मैं तो कहती हूँ कि जब कई दफा हम कहते हैं ओ बच्चे जवान हो गए, इन्होंने अपना आप सांभ लिया, नहीं, जब तक आपके बच्चे और फिर आपके बच्चों की शादियां, ये भी फिक्र मां को, अच्छा रिश्ता मिल जाए, लड़की को अच्छा लड़का मिल जाए, बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए। जवान होने से शादी होने तक फिक्र में रहती है, जुस्तजू में रहती है कि मैं किस तरह अपने बच्चों की खुशियां समेट के इनके झोली में डाल दूं, किस तरह इनको संभाले रखूं। हर तरह की परेशानियों में से वो गुजर जाती है। कई दफा ऐसा होता है, शादी भी हो गई, बच्चों के बच्चे भी आ गए, मैं कहती हूँ कि ये नहीं हो सकता कि माँ रिलैक्स, इत्मीनान आ गया, और जब बच्चे आ जाते हैं मेरा ख्याल है उससे ज्यादा माँ को फिक्र हो जाती है। जरा बच्चे को कुछ हुआ तो वो नानी या दादी है वो ज्यादा परेशान हो जाती है, वो ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि बच्चों के बच्चे फिर ज्यादा प्यारे लगते हैं, फिर उनकी फिक्र लग जाती है। माँ का किरदार ये है, माँ है और नानी है और दादी है, हर वक्त उनकी फिक्र, बच्चे भी हो गए उनकी फिक्र, उनकी परेशानी, इनको ये ना हो जाए, इनको गर्मी से बचाओ, इनको सर्दी से बचाओ, इनको बाहर ना लेकर जाओ, इनको आजकल जैसे कोरोना है, मैं अक्सर जो इसके बच्चे छोटे हैं मुझसे कहती हूँ बाहर ना जाया करो, बाहर कोरोना है। हर तरीके से माँ का किरदार है, माँ का एक रोल है। कैसा रोल है? कभी औलाद को इन बातों पर गौर करना चाहिए कि किस तरह माँ स्ट्रगल करती है, किस तरह माँ परेशानियों में से गुजरती है, दिन और रात जागती है, खाने पीने का इंतजाम करती है, और हर माँ को ये पता होता है कि मेरे बच्चे ने क्या खाना है, मेरे फलां बच्चे ने क्या खाना है, मेरे फलां बच्चे को क्या चाहिए। इस तरह हमें हर तरीके से माँ ये सब कुछ स्ट्रगल करती रहती है। कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चा भी दूर ही होता है घर के बाहर। पहली बात है माँ सो ही नहीं सकती जब तक औलाद घर में ना आ जाए, बच्चे घर में ना आ जाए, सारी रात जागती है, सारी रात जागती। जब तक बच्चा घर में अंदर दाखिल ना हो जाए फिर वो
पूछती आ गए, फिर माँ इत्मीनान से सोती है। अक्सर मैं कहती हूँ, दरवाज़ा जो ही ऐसे हैंडल उसका होता है, मैं कहती फलां आ गया। बाहर से आवाज़ आती है, मैं कहती फलां आ गया। तो जब आ जाती हूँ, बाप तो सोए रहते हैं, उनके नहीं पता कौन आया, कौन चला गया, कौन गया। माँ भी एक चौकीदार है। मैं कहती हूँ कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि सुबह उठते हैं, फलां बंदा फलां बच्चा गया था, कितने बजे आया। मैंने कहा आपको तो होश ही नहीं होती, बेल होती है, दरवाज़ा नॉक हो, और जिस बच्चे ने फ़ोन करना है मुझे ही करना है कि माँ जागती होगी। बाप ने तो फ़ोन नहीं उठाना ना, वो कहते हैं मैं ये सुने मैंने इत्मीनान देता, मैं गहरी नींद सोता हूँ। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात है कि खुदा ने उन्हें अच्छी नींद दी है, इसलिए कि उनके अंदर उसका इत्मीनान है और वो तसल्ली से सो जाते हैं अपने आप को बच्चों को यस्सु के सुपुर्द करके। लेकिन माँ की एक जिम्मेदारी है, माँ ने हर बच्चे की फिक्र करनी है। तूने कितने बजे जाना है, तूने कितने बजे आना है, तूने क्या खाना है, फलां ने क्या खाना है। मेरा ख्याल है मेरा तो सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। बेशक मैं बच्चों वाली, बच्चों के बच्चे मैंने देख लिए, मैं हर एक की फिक्र करती हूँ, हर एक के लिए, हर एक के लिए। आप भी उन माँओं में से हैं जो हर वक्त बस इसी सारा दिन फिक्रों में लगी रहती हैं। रात हो जाती है, थक हार के सो जाती है माएँ, उन्हें नहीं पता सारा दिन मैंने क्या और किसके लिए क्या किया है। क्यों? उसकी जॉब ही यही है। कहते हैं कि माँ का जो काम है, उसकी जो जॉब, सारा दिन काम करना, खानदान को संभालना, फिक्र करना, उसका किरदार जो है वो रुपए पैसे से नहीं तोला जाता। वो रुपए पैसे से नहीं तोला जाता। माँ नहीं कहती इन्ने घंटे काम किया, 8 घंटे अज मैं काम किया ते मेरी हुण तनख्वाह वधा दिओ पारी साहब जी। मेरी प्रमोशन कर दो, अब तो मैं नानी दादी बन गई हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरी प्रमोशन कर दो। लेकिन माँ को इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं। वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए भी कुर्बानियाँ देती है। वो उनके लिए भी वो सब कुछ सह जाती है। माँ एक ऐसा किरदार है। हमें भी इस तरह बगैर किसी लालच के कि हमें पैसे मिलेंगे, मेरी कोई तारीफ करेगा, नो, ये कभी भी ज़हन में ना रखूं कि मैं इतना काम करूंगी, मैं सारा दिन ये करूंगी, मैं उनको करके दिखाऊंगी, ये देखो मैंने आज ये किया तो मेरी तारीफ करो। कोई तारीफ नहीं। उन्होंने की कहना कीता ते अपनी औलाद लिए कीता, जो मेहनत की अपनी औलाद लिए की, जो सारा दिन आप करती हो, जो छोटे छोटे काम जो इंसान और घर के बड़े लोगों की नज़र में कुछ नहीं, सारा दिन औरत काम कर करके माँ थक जाती है, हार जाती है। लेकिन ये माँ की लासानी मुहब्बत है। माँ की हैसियत से लासानी किरदार अदा करती है। किस तरह वो अपने आप को पेश करती है। माँ के काम की कदर माली लिहाज से नहीं की जा सकती। कितने घंटे काम किया, मेरी प्रमोशन होगी। माँ अपनी ज़िंदगी से दूसरों की बेलौस खिदमत करती है। अगर माँ तो है ही, अगर दादी बन गई है तो नानी बन गई है, बेलौस खिदमत। उसने कहना मैं अगर काम करूँगी इस बच्चे के लिए, पोते के लिए, दोते के लिए, तो मेरे बच्चे मेरी तारीफ़ करेंगे। नहीं, उसके अंदर माँ का ऐसा किरदार है, माँ की मुहब्बत है, माँ की ममता है कि वो कभी भी कोई काम करने से नहीं घबराती जो औलाद के लिए हो। तो खुदावंद माँ की बड़ी कदर करता है। ना उसे कोई डिग्री मिलेगी, ना उसकी प्रमोशन होगी। माँ की कदर माली लिहाज से नहीं की जा सकती कि उसने कितने घंटे काम किया, ख़ानदान की
दुनियावी और रूहानी बरकत के लिए माँ का अहम किरदार है। खानदानी और रूहानी किरदार के लिए माँ का एक अहम किरदार, और वो कौन सा है? वो भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। बेशक बाप भी उस वक्त साथ थे, लेकिन यीशु मसीह ने माँ की बड़ी कदर की है। कलाम में लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। उस वक्त भी लाइक ऐसे ही था जिस तरह के बड़े बड़े क्रूसेट होते हैं। यीशु की आवाज सुनने के लिए, मौजज़ात देखने के लिए, शिफा पाने के लिए दुनिया ही दुनिया थी, इस कदर लोग होते थे। लेकिन जब माँ ने समझा कि हम अपने बच्चों को भी यीशु के पास लेकर के जाएं, ताकि यीशु जब इन पर हाथ रखेगा तो ये हर तरह की वबाओं और बीमारियों और परेशानियों से आज़ाद रहेंगे, और हर तरह की आसमानी और रूहानी बरकत यीशु के वसीले इन पर नाज़िल होंगी। कितनी कोशिश से वो यीशु के पास पहुंची, शागिर्दों से झिड़के भी खाई, शागिर्द राह में रुकावट भी बनते रहे, शागिर्द कि आगे नहीं जाना, आप रोंदे जाओगे, आप यीशु के पास नहीं पहुंच सकते। लेकिन माँ की कोशिश देखो, जुस्तजू देखो कि उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और यीशु तक अपने बच्चों को लेकर पहुंच गई। यीशु तक कोशिश की, हम यीशु के पास बच्चों को लेकर के जाएंगे। और यीशु ने कहा, यीशु ने शागिर्दों को झिड़का, यीशु ने लोगों को झिड़का कि इन्हें मना ना करो, इन्हें मेरे पास आने दो, ताकि इनके सर पर हाथ रखूं और इन्हें मैं बरकत दूं। और जिस तरह कलाम में लिखा है बरकत दूं, तो वो किस कदर एक ऐसा हसीन मौका था, कितना शानदार वो वक्त था कि जब यीशु मसीह के पास वो औरतें बच्चों को लेकर के गईं। मेरे ख्याल में वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था कि वो यीशु को बच्चों के पास लेकर के पहुंच गईं, और यीशु ने उन पर हाथ रखे। और कलाम में लिखा हुआ है कि जिस तरह वो यीशु के पास लेकर के जाती हैं, वो तो सारी उम्र बच्चों इस चीज़ को नहीं भूली होंगी कि हम यीशु तक पहुंची हैं अपने बच्चों के लिए। यीशु ने हमारे बच्चों पर हाथ रखा हुआ, उन्हें बरकत दी है। आज भी मैं इन माँओं को, नौजवान माँओं को, सारी माँओं को ये कहती हूँ कि अपने बच्चों को यीशु के पास उसकी हजूरी में लेकर के आएं। जब खुदा के खादम हाथ रखकर दुआ करते हैं तो खुदावंद बरकत देता है, और हर तरह से ईमान की मजबूती और हर तरह से वो बरकत पाते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर के आए। जिस तरह कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु ने भी अपनी माँ की फिक्र की, सलीब पर भी माँ की फिक्र की, इस तरह हमें भी अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करनी है, जुस्तजू करनी है, और यीशु के पास इनको लेकर के आना है। और फिर ये कलाम में लिखा हुआ है, अगर सब कुछ माँ करती है अपनी औलाद के लिए, तो जो एक दिन माँ के लिए मुकर्रर किया गया है, लिखा है इमसाल की किताब में, अपनी माँ को शाद मानकर, क्या लिखा है? अपनी माँ को शाद मानकर। वो किस तरह हम शाद मान कर सकते हैं? हम अपनी माँ की तारीफ कर सकते हैं, हम अपनी माँ की खुशी के लिए कुछ भी थोड़ा थोड़ा हम खुश करने के लिए, उसको शादमान करने के लिए हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। अक्सर जब मैं घर में खाना बनाती हूँ और टेबल पे रखती हूँ तो बच्चे और बच्चों का बाप खाते हैं तो तारीफ करते हैं, खुश होते, वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया, तेरी माँ ने आज हमको खुश कर दिया। जब वो मेरी इस चीज़ को देखकर जो मैं उनके लिए स्ट्रगल करती हूँ तारीफ करते हैं, तो फिर मेरा दिल करता है मैं और इससे भी अच्छा बनाऊँ। हमें भी चाहिए कि अपने माँ बाप को शाद मान करें। बच्चों को चाहिए, माँ तो इतना
कुछ करती है, एक दिन मुकर्रर हो चुका है, तो उस दिन ही आप, हर रोज तो नहीं, हर रोज हमारा मदर डे है, हर रोज हम मदर डे, हमारे घर में हर रोज मदर डे है। और रॉबर्ट हर बात में कहता वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हर रोज मदर डे तारीफ करता है, खुश होता है, आपने ये किया, आपने वो किया। मैं तो जब अपने घर में कहीं जाना हो तो मैं तैयारी के बाद अपने बच्चों को, अपने आप को कहती हूँ देखो मैं ठीक लग रही हूँ, कहते वाह जी वाह अम्मी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी तारीफ है, ये तारीफ है, माँ को खुश करना। ये आप अच्छी लग रही हो, आपने ये चीज़ पहनी है, आप बहुत अच्छी लग रहे हो, ये तारीफ है, खुश करना। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिसाल की किताब उसका 31वां बाब, अगर आप ये पूरा पढ़ें तो किस तरह इसमें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसके बेटे उठते और उसको मुबारक कहते हैं। किन के बेटे? उन ईमानदार अच्छी माँ को के बेटे उठते और उसको मुबारक कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि हमारी माँ किस तरह सारा दिन हमारे लिए मेहनत करती है। कलाम में ये 31 बाब में ये भी लिखा हुआ है कि वो सुबह उठती है और अपने घराने के लिए मेहनत करती है, घराने पर बाखूबी निगाह रखती है। अगर बाखूबी निगाह रखती है तो फिर हमें भी चाहिए, औलाद को भी चाहिए कि वो सुबह उठे और माँ को मुबारक कहें और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करे। ये नहीं कि सिर्फ, बल्कि मैं कहती हूँ कि मजलिस में भी उसकी तारीफ करे, लोगों में बैठ के भी उसकी तारीफ करे। चोरी चोरी नहीं है, बड़े अच्छे है, बड़ा ये काम कर मजलिस में। कई दफा लोगों में बैठ के ना शौहर या बाप तारीफ नहीं करता, शर्माते हैं। नहीं, लोग कहेंगे है कि बुढ़ी थले रखा है, बड़ियां तारीफा करता है ना, ऐसा होता है ना। वो बेचारे डरते हैं, क्या करें, हमारा मुआशरा ही ऐसा कि वो जब करते हैं तारीफ तो कहते हैं हर वेले बुढ़ी दियां तारीफा करता रहता। हर वेले मेरे शौहर को बड़ी अच्छी आदत थी, वो अपने सारे ख़ानदान बहन भाइयों के सामने पता क्या कहता था, देखो मेरी बीवी ने कितना अच्छा काम किया, ऐ ते राह भी मैनू वहांदी जो असीं गड्डी ते जाने। ये तो अपनी तरफ से मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनको बुरा लगता है ना, सानू पता है राह भी तेनू पांदी है। वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बुरा लगता था। हर वक्त बीवी 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 करता है, लेकिन खुदा का खादम है, कलाम को पढ़ता, कलाम को जानता है, लोगों को सुनाता। खुद ना करे तो फिर खुद ना नमूना बने तो दूसरों को क्या वो नमूना बनेगा वो किसी के सामने। मैंने कहा आप क्यों ऐसा करते हैं, वो तो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते है बुढ़ी दे रानमाई च चलता है। ओ नो, कहते कोई बात नहीं। इन्होंने खूब हंसना, जब उन्होंने कहा ना सानू पता है, ते जो कुछ राह वहांदी उधर नु पारी साहब जाते हैं। इन्होंने खूब कह के लगाने, तो मैंने कहा आप मेरे खिलाफ उन्हें कर देते हो, आप खुश होते हो। लेकिन खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, मिसाल की किताब 31वां बाब, उसका शौहर उसकी तारीफ करता है, मजलिस में तारीफ करता है, उसके बेटे उठते और उसको मुबारक कहते हैं। जिस तरह यस्सु को अपनी माँ की फिक्र थी, सलीब पर था, लेकिन माँ की फिक्र की, उसने अपनी माँ की, उसने कहा मेरी माँ किस अच्छे शख्स के पास, किस बेटे के पास रह सकती है ताकि वो अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर सके। आज भी हमारी औलाद, हमारे बेटे, हमारी बेटियां माँ की फिक्र करती हैं, और अक्सर बच्चे, और ख़ासकर स्लोमी दूर है हमसे, रॉबर्ट भी, लेकिन जब देखेगी अब्बू आप कमज़ोर लग रहे हैं, अब्बू आपने ये कलर अच्छा नहीं पहना, ये आपको सूट नहीं करता। बात ये है कि बच्चे फिक्र करते, बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब अच्छे लगे औलाद खुश होती है। तो मैं आज माँओं को कहूँगी कि बच्चों को रूहानी तौर पर ऐसी उनकी तरबियत करे जो खुदावंद के कलाम में जिस तरह लिखा हुआ है। माँ ने की और नानी ने की,
कलाम में ये लिखा कि किस तरह तूने सीखा। ये भी एक दूसरा तीमुथियुस का 2 बाब और 14वीं आयत में भी लिखा हुआ है, मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा था। है ना, खुदा के कलाम में लिखे किन लोगों से सीखा था। वो ही है कि माँ और नानी और या दादी तरबियत करती हैं रूहानी तौर पर। अगर आप बच्चों का आप उस ढांचे में सांचे में आप डालेंगे, मोहब्बत, यूनिटी, इत्तेहाद और बाहमी मोहब्बत में कायम रहोगे, तो फिर ये खानदान कायम रह सकते हैं, ताकि बच्चे कभी इस राह से या उस राह से ना मुड़ जाएं, बल्कि बच्चे उस राह पर चले जो खुदावंद की राहें खुदावंद की तरफ जाती हैं। हालेलुया। सारी माँओं को मैं आज ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल का जो माहौल हम देखते हैं कि बच्चे फट से अपने यीशु को छोड़ के इनकार करके किसी और राह पे चले जाते हैं। अगर हम इस ढांचे को, इस सांचे को मजबूत रखना चाहते हैं कि बच्चे एक मुट्ठी में बंद कर रहे हैं, तो फिर हमें इन्हें रूहानी तौर पर मजबूत करना है, यीशु के पास लेकर के आना है। कई माँ को मैंने कहा बच्चे नहीं आए, ओ सो रहे सन, ओ रोंदे सन, असी नहीं जाना ए लाड लाड और बड़े हैं। जब बच्चे और राह पे चले जाते फिर आपके लाड किधर गए। आपको चाहिए इन हालात और जो आज का इस दौर में हो रहा है, बच्चों को जबरदस्ती खुदावंद के घर में लेकर के आए, ताकि बच्चे खुदा का कलाम सुने और बुरी राहों से बच जाए, बुरी राहों पर ना चलें, अपने मसीह को ना छोड़ दें, यीशु को इनकार ना करके किसी और राह पे चले जाए। यीशु के पास आए। अब्दी जिंदगी तो यीशु के पास है, हमेशा की जिंदगी तो यीशु के पास है। आप किस राह पे जाना चाहते हो? उस राह पे जहां रंज, गम, परेशानी, मुसीबत, दुख और तकलीफें हैं, यीशु के पास आओगे, वो ही आपको आजाद करेगा। क्योंकि जिस बच्चे ने आके यीशु की हजूरी में और खुदा के खादमों ने हाथ रख कर दुआ की, उन्हें मस्सा किया, उन्हें महसूस किया, उन खानदानों में मोहब्बत ही मोहब्बत, इत्मीनान ही इत्मीनान, और बच्चे बड़े सुकून के साथ और खुदा का कलाम सुनते और यीशु की राहों पर चलते हैं। सो आज आप सबको और हैप्पी मदर्स डे। खुश हो, घर में खुशियां मनाएं, बच्चे अपने माँ की फिक्र करें, अच्छा खाना खिलाएं, और जो कुछ भी आप छोटा मोटा गिफ्ट माँ को देना चाहते हैं वो उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, और माँ की कदर करें, क्योंकि यीशु ने माँ की कदर की। माँ की फिक्र करें, क्योंकि यीशु ने माँ की फिक्र की। सो आज आप सबको हैप्पी मदर्स डे।